پلانٹس کی بات کرتے ہیں، اس کی طرف آ جائیں اور شروع کرتے ہیں ایریز سے. آپ کا کیسا میں ایریز سے شروع کر رہا ہوں جی. تو ایریز حضرات، آپ اپنے کام کو، آپ کے کام کے خانے میں مری کھایا ہوا ہے اور بڑی آپ تیزی دکھا رہے ہیں اور اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کا زول سے مقابلہ ہو رہا ہے 22 تاریخ کو. تو یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں آپ کو ٹینشن آ رہی ہے، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اپنے کام کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کے حوالے سے اگر کوئی ٹینشن پیدا ہوئی تو آپ کیا کریں گے. اس کے علاوہ ایک ہفتہ آپ کے پاس ہے، آپ بڑا پرسکون یہ ہفتہ گزاریں تاکہ اگلے ہفتے آپ پوری بھرپور توانائی سے حالات کا مقابلہ کر سکیں. گھریلو طور پر ٹھیک ہے معاملات آپ کے، چوتھے خانے میں سورج آئے ہوئے وہ ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اپنا جو کہ مزید بوجھ آ جائے وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. گھریلو طور پر جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اگر کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اسد جو ہے وہ 10 جون کو عطارد جو ہے ایک اگلے خانے میں داخل ہو جائے گا، اسد میں داخل ہو جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ میں زیادہ گرم جوشی آ جائے گی، میل ملاپ، گرم جوشی، اور اس طرح وقت گزارتے نظر آتے. لیکن یہ آپ کے جو کام اور صحت کے لحاظ سے ٹینشن ہے 22 تک ہے. وقتی تو بڑا فیل کر رہے ہوں گے، چپ چاپ ہے، سکون ہے. آپ اس سکون کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں تاکہ آپ نفسیاتی طور پر اگلے ہفتے کے لیے تیار ہو جائیں. اب میں آتا ہوں سوری حضرات کی طرف. سوری حضرات، آپ کو بڑے مواقع ملنے والے ہیں اور مل رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، اور آنے والے ہفتوں کے لیے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں سوچئے، پلان کیجئے، کاغذ پر لکھیے، اس کے لیے تیار ہو جائیں. اگلے ہفتوں کے لیے جو کچھ آپ چاہتے ہیں، تیزی آنے والی ہے. اور 17 جولائی جو ہے اس نیا چاند ہوگا، یعنی چاند کے پہلے دن. اور دوسرا جو ہے وہ اپنا نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ جو ہے، راس اور زم، وہ اپنا گھر تبدیل کرنے والے ہیں. ان کے تبدیل کرنے سے آپ اپنے آپ کو بعد میں بھرپور توانائی آ جائے گی آگے بڑھنے کے لیے 17 جولائی کے بعد. تو ٹھیک ہے، آپ بھرپور طریقے سے آگے بڑھیں، کوشش کریں اور اپنے معاملات کو مزید چمک دمک میں پیدا کریں، ترقی کی طرف جائیں. ایک نیگیٹو پوائنٹ سوری حضرات اس ہفتے جو آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، میں تو احساس دلانا چاہتا ہوں لیکن لگتا ہی ہے کہ آپ کو دوسروں کا کوئی احساس نہیں ہے، آپ دوسروں کے جذبات کی پرواہ نہیں کر رہے. تو ذرا اس پہلو پر بھی غور کیجیے. اگر آپ دوسروں کی پرواہ نہیں کریں گے تو کل دوسرے نہیں پرواہ کریں گے، وہ تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. ایکشن اینڈ ریئیکشن آر اپوزٹ اینڈ ایکول اینڈ اپوزٹ. آئیے جی جوزہ حضرات کی طرف. جی جوزی. بل سر. جیمنائی. جمنائی مصروفیت آ رہی ہے آپ کی لائف میں، اور یہ مصروفیت بہت ضروری ہے، اس کو اپنائیں. شاپنگ کرتے وقت آپ بڑی خوش ہو رہے ہیں اس ہفتے کہ میں شاپنگ اتنے سستے طریقے سے شاپنگ کر سکتا ہوں. جیمنائی کا جو اسپاؤز ہے وہ پریشان ہوگا، جیمنائی تو خوش ہوں گے شاپنگ کرتے ہوئے. ہاں، یہ جو شاپنگ کے حوالے سے آپ کو خوشی ہوگی کہ میں اتنا ہوشیار ہوں یا میں اتنی ہوشیار ہوں کہ اتنے سستے داموں چیزیں خرید لیتی ہوں. گڈ. ایک تو یہ بات اچھی نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کچھ مہینہ پہلے کچھ فیصلے کیے ہوئے تھے، آپ آ گئے نا وقت ان فیصلوں پر چلے. آپ ان فیصلوں کی جو آپ وہ بھرپور خواہش تھی اس کو پورا کریں، اور اسے آپ کی زندگی میں ماشاءاللہ اچھی تبدیلی آنے کی امید ہے. اور کاروبار کے لحاظ سے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں اکیلے کروں یا کوئی ساتھ رکھوں. یہ بڑی الجھن بنی ہوئی آپ کے لیے. فیصلہ کریں. بہتر یہ ہوا کہ آپ خود ہی کریں. آپ ہر وقت ہر دن 6 دفعہ بدلتے ہیں، تو اس طرح کیسے آپ کسی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ تو آپ خود کریں، خود بدلیں،
खुद अपने आप को बदलाएं और अपने काम को चमकाएं, तो यूं नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगले 3-4 जो 5 हफ्ते हैं ना, आप बड़े मुज़ाकरात और गुफ्त शनीद, और इसका आपको वैसे ही बड़ा शौक है बातें करने का, गुफ्त शनीद का, ठीक है। तो वो आ रहे हैं, तो आप हिस्सा लें, बात करें, लोग आपकी बात को सुनेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि आप बात कर सकते हैं, बात तो करने के हर वक्त तैयार हैं वो, अल्लाह ने उनको ये खसूसियत दी है, तो आप इस खसूसियत का फ़ायदा उठाएं। जी प्रोफेसर साहब, कैंसर के बारे में बताइए। कैंसर आपके लिए तो बहुत अच्छा हफ्ता आ गया है, आप बड़े खुश हो जाएंगे। आप वैसे हसास तबीयत के मालिक हैं, तो आपके लिए हफ्ता अच्छा ही होना चाहिए। नंबर 2, अपना सेहत का ख्याल रखें। सूरज आपके अपने खाने में आया हुआ है, आपकी तवानाई में इजाफा है, कुफ्त इरादी भी माशाल्लाह बहुत होगी, हालात भी अच्छे हैं, और सोच विचार करें, और जो आने वाले वाक़यात हैं अगले हफ्ते, उनके लिए आप तैयार हो जाएं। और कोई ना कोई टेंशन होगी, और आपको पता ही है आप टेंशन के साथ आपका क्या रिलेशन है, तो ज़रा अपने आप को तैयार रखिए। फ़िलहाल इस हफ्ते को एंजॉय करें, और कुछ आपने को बड़े फैसले किए हुए हैं अप्रैल में, चंद महीने पहले, तो वो जो फैसले किए हुए हैं, अब ये है कि उनके बारे में सोचें, उन पर अमल करें। वक्त आ गया है आपके लिए। और उसके बाद कोई शख्स आपकी मदद भी करने वाला है, या कोई नया मौका मिलने वाला है, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस मौके से आप हर सूरत फ़ायदा उठाएं, और आपकी जो पॉजिटिव आपके जो क्वालिटीज़ हैं उनको बरूए कार लाएं, उन पर अमल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, और हसासियत से हर सूरत बचें। सूरज आपकी मदद कर रहा है। आप बहुत मसरूफ़ रहेंगे अगले 3-4 हफ्तों में। गुड, मसरूफियत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है, लेकिन अपना भी ख्याल रखें, अपने लिए कुछ वक्त निकाल लीजिए। कोई सरतानी हजरात के लिए सवाल? आइए जी, 80 हजरात की तरफ चलते हैं। लियो 80 हजरात अगस्त में पैदा होने वाले जी। 80 हजरात, आपको बारहवें खाने में सूरज है। बारहवें खाने में सूरज हो तो जो ख्वाब आ जाते हैं, सच्चे ख्वाब आते हैं, आपको सच्चे ख्वाब आने वाले हैं, और ये ख्वाब आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल है। इन ख्वाबों, सच्चे ख्वाबों की वजह से अगर आपने इनको नोट किया और इनको समझा, तो आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में पता चल जाएगा कि मेरे मुस्तकबिल के बारे में अब क्या होने वाला है, कैसे हालात आने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है, और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। वजदानी तौर पर आप आगे आने वाले दौर को देखने वाले हैं माशाल्लाह। इसके अलावा रास और ग़म अपना घर तब्दील कर रहे हैं, और ये तीसरे और नावे खाने में अब आपके दाखिल हो जाएंगे। आपके ज़िंदगी तब्दील करने के लिए कुछ इक़दामात करना चाहते थे आप पिछले महीनों में, कुछ आप कदम उठाना चाहते थे ज़िंदगी को तब्दील करने, तो वो वक्त आ गया है। आइए उठाइए कदम, अपनी ये ख्वाहिश पूरी कीजिए, और जो कुछ आप करना चाहते हैं उसे अपना करें। जामा पहने। और जो आखिर में मैं ये कहूँगा कि कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा मुतासर करने वाला है। आप किसी शख्स से मुतासर होते ही नहीं, आपको हमेशा अपनी पड़ी हुई है, एक्सक्यूज मी, लेकिन इस हफ्ते आपको कोई शख्स बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा। ठीक, अगर उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वेल, अच्छे आदमी की तरफ रजू करना चाहिए। आ जाए जी वर्गो। मैं वर्गो तरफ आ रहा हूँ। वर्गो हजरात, आपके जो दोस्त अवाम आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, और इस मदद से आप बहुत आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और किसी दावत में आप जा रहे हैं या किसी तकरीब में हिस्सा लेने वाले हैं, वहाँ जाने के बाद आप देखेंगे कि हर कोई आपको देख रहा है, हर कोई आपको तवज्जो दे रहा है। तो अगर आप खातून हैं तो ये तो बड़ा आपके लिए नाजुक मरहला है कि आप किस तरह ये सब फेस करेंगे तकरीब में, सब लोगों की तवज्जो। बहरहाल हमें तो प्लानर बताने होते हैं कि ये तवज्जो आपकी तरफ भरपूर तवज्जो आ रही है, आप इसको एंजॉय करिए और तवज्जो का मरकज़ बने रहिए, अल्लाह करे। 17 जुलाई को माली मामलात बेहतर बनाने के लिए
आपने जो चंद माह फैसले किए थे या प्लानिंग की हुई है वो वक्त आ गया है। अब आप उन पर अमल करें, उन फैसलों पर, और अपने माली मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, और अपना नए लोगों से रब्ता पैदा करें, किसी क्लब में दाखिल हो जाए, ये भी आ रहा है मौका, इस्लामाबाद क्लब में दाखिल हो जाए, इजाज़त। बड़ा महंगा है इस्लामाबाद सारा क्लब, जब प्लेनेट आ रहे हैं तो फिर आ रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो आ जो रहे हैं, ठीक है, प्लेनेट आ रहे हैं। ठीक। तो हजरात अगर आप क्लब में आना चाहते हैं, थिंग्स आर देयर, मौका मिल रहा है आपको, इससे फ़ायदा उठाइए, और जो फैसले किए हुए हैं उन पर अमल करने की आ जाए जी आप। माली लिब्रा। तौर पर अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अब मैं आता हूँ मैदानी अफराद की तरफ। लिब्रा। मैदानी अफराद पूरे हफ्ते के लिए मेरे पास एक ही लफ्ज़ है, पहले तो मैं उसको बयान करूँ, और वो लफ्ज़ है अनस्टॉपेबल। ये पता है ना आप आपको ऐसे किस, देख रहे हैं मेरी तरफ ये आपको पता है ना किस किस का प्लेनेट है ये आपको पता है ना किसका प्लेनेट है? ये सर, पीटीआई किसका भी है? चेयरमैन का भी है, तो आप किसका कह भी रहे है? हैं कि मैं तो ये कहता अनस्टॉपेबल। हूँ कि आपका है अनस्टॉपेबल। अच्छा, तो मैदानी अफराद आप इस हफ्ते रुकने वाले नहीं हैं, आप बढ़ रहे हैं, और पिछले महीनों ने आपकी दुर्गत बना दी है। एक्सक्यूज मी, मुझे दुर्गत को अच्छा लफ्ज़ दिया। नहीं ठीक है, ठीक है। दुर्गति, बल्कि इससे भी कोई अगला वर्ड अगर है तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो पिछले महीनों से बहुत बुरा हाल हो गया है, और आप तब्दील हो गए हैं, आपने बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत गर्द आप पर पड़ी हुई है। मेरे पास अच्छी खबर ये है मैदानी अफराद के वो गर्द सेटल हो रही है, गिरने वाली है बैठ रही है इस हफ्ते, और इस तरह आपकी जिंदगी जो है बदलेगी, फैसले करेंगे आप। पिछले हफ्ते से भी कोई शख्स आपके पास आया हुआ है, आप उस पर पूरा उतरे, वो जो चाहता है कि आखिर तक आप उसका साथ दें, आप उसे कहें जी मैं आखिर के बाद भी आखिर तक आपका साथ दूंगा, मोर कमिटमेंट। ठीक है, या इसके लिए आपके पास लफ्ज़ है तो आप नहीं आपने पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि कमिटमेंट, इट इज टाइम टू मेक। वो चाहते हैं कि आप आखिर तक लड़ें, मेरे साथ रहे, तो ये कमिट करें कि आई विल बी विद यू। ठीक है, और वो बहुत ही फैसला कौन किस्म की शख्सियत है इनके लिए, ठीक है, मैदानी अफराद के लिए। तो इस हफ्ते गर्द ख़त्म होने वाली है जो उन पर पड़ी हुई है, तो यूँ आपकी ज़िंदगी में एक रास्ता सामने नज़र आ रहा है। ठीक। गुड। अब आ जाए स्कॉर्पियो। और वाक़यात जो है वो आपकी रहनुमाई करेंगे। अब एक का शमखा ये है कि मैं वो करूं या आवाम की तरह सोचूं, फैसला करें। आप अपनी करना चाहते हैं, सोचों का एक इक़दाम उठाना चाहते हैं, या आवाम की तरफ से, इस कशमकश का फैसला करें। आइए जी अकबरी हजरात की तरफ। स्कॉर्पियो पे आइए। स्कॉर्पियो हजरात, आप फिलासफर बने पड़े हैं सबसे। आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया क्या है, हजूर दुनिया आज तक किसी को समझ नहीं आई, आप क्या सोच रहे हैं? बहरहाल आप सोचते रहेंगे पूरा हफ्ता, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है, ये सब क्या हो रहा है। अल्लाह करे आपको कोई हल मिल जाए, और उसके बाद आप इस हफ्ते ये सोच कर दुनिया के बारे में कोई राय कायम करने वाले हैं। अल्लाह करे वो अच्छी राय हो। आप जो तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए वक्त आ गया है। 17 तारीख के बाद तैयार हो जाइए, और ये जो आपकी रोमानवी ज़िंदगी है इसको 4 चांद लगने वाले हैं। गुड। जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं वो आसान हो रही हैं। गुड। और ये जो मरीख की नई प्लेसमेंट है, वर्गों में मरीख आया हुआ है 4-5 दिनों से, और 1.5 महीना रहेगा, इससे आप और ज़्यादा मसरूफ़ हो रहे हैं, सरगर्म में अमल हो रहे हैं, और इससे आप बहुत सारे मसाले अपने हल करने के काबिल हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ सेजिटेरियस तरफ, जिन्हें हम उर्दू में कौसी हजरात कहते हैं। कौसी हजरात, हर चीज़ में बहुतात नज़र आ रही है। सेहत है तो बहुत अच्छी, पैसे हैं तो बहुत ज़्यादा, सुकून है तो बहुत ज़्यादा। तो यूँ वो विश यू बेस्ट ऑफ इट।
अल्लाह ताला आपको ये नसीब करे। और आप का कोई तल्लक है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, इस तल्लक में आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी आने वाली है, तो उसके बारे में सोचिए। और ये जो रास और जाम अपना घर तब्दील कर रहे हैं, इसके वजह से किसी दोस्त अहबाब और घरेलू अफराद को आपने पिछले दिनों बातें करके हैरान किया हुआ है अप्रैल में, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो हो जाऊंगा, ये होने वाला है। तो वो फिर अगर होने वाला है तो करें आप करें। अब वो ये जो 17 को रास और जाम हालात घर तब्दील कर रहे हैं, इससे फिर आपको वो करना पड़ेगा। और उसके बाद पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को आप आगे बढ़ेंगे। अतारत की वजह से आप तंग आ चुके हैं काम से, घरेलू ज़िंदगी से, आप चाहते हैं कि इन धंधों से मैं बाहर निकल जाऊं। ऐसा हो तो नहीं सकता, आप कैसे निकल सकते हैं? और जब निकलने का वक्त आ गया उस वक्त आप कहेंगे मैं जाना नहीं चाहता। ठीक हो गया। अब आ जाएं आगे। आगे सर मैं कैप्रिकॉर्न आपके महबूब कायद का जद्दी कैप्रिकॉर्न हुजूर बहुत बड़ा कदम आप उठाने वाले हैं, देख लीजिए, सोच लें, वेरी बिग स्टेप। उसके बाद माजी में आपके साथ किसी से राब्ता रहा है, कोई तल्लक था, वो आपसे दोबारा राब्ता कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं मिलने की, वो भी सोचिए। ये जो रास और जम अपने घर तब्दील कर रहे हैं, इनके तब्दील करने से आपके पिछले महीनों में बड़ी जिंदगी में हलचल थी, बड़ी हलचल थी। वो जो हलचल चली आ रही थी, रास और जम के घर तब्दील करने के बाद आप महसूस करेंगे कि उसमें कमी आ गई है और आपकी जिंदगी में आगे एक बहुत बड़ा मौका आ गया है। ठीक। उस मौके के लिए आप तैयार हो जाइए, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। और आला तालीम के लिए, बाहर जाने के लिए, आला तालीम के लिए मौका आपको मिल रहा है। अगर आप मज़ीद किसी स्किल में अपने एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं तो इट नाउ इट्स टाइम ये बाहर जाने के लिए जो यंग कैप्रिकॉर्न। और आखिर में जदी हजरात, मैं जवान जदी हजरात से मुखातिब हूँ, somebody is attracting you, कोई आदमी आपको अपनी तरफ खींच रहा है तो खिंच जाएं, देख लीजिए, we leave up to you। ठीक है, आ जाएं जी। अब जल्दी हजरात, इस हफ्ता आपकी शख्सियत पे बहुत बड़ा असर होगा दूसरों लोगों पर। अच्छी बात है, आप अपनी पुरानी जिंदगी के तौर तरीकों को छोड़ने वाले, फिर अख्तियार करने वाले हैं। क्या आज से कुछ साल पहले आपकी आदतें रोजमर्रा की जिंदगी और तरह की थी, वो दोबारा आने वाले हैं, तौर तरीके, वो रूटीन आप दोबारा अख्तियार कर लेंगे। फर्ज कीजिए आप पहले मजहबी तौर पर बहुत पाबंद थे, तो अब दोबारा पाबंद होने वाले हैं अगर बीच में हट गए, या जो भी एक्टिविटी थी आपके, तो ये अच्छी बात होने वाली है। आप उन पुराने तौर तरीकों को दोबारा अपनाएंगे, जिससे आपकी जिंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके बाद ये जो रास और जाम अपना घर तब्दील कर रहे हैं, उसका वक्त आ गया है कि आप जो भी मौके आ रहे हैं उनसे आप फायदा उठाएं। जल्दी हजरात, एक नफ्सियाती बीमारी है कि आपका जो लाशऊर है उसमें कुछ बातें फंसी पड़ी हैं। आप परेशान होते हैं और सोचते रहते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ, बाजार कोई ऐसी बात नहीं हुई लेकिन मैं कल से परेशान हूँ। वो आपका लाशऊर अंदर से आपको प्रिक करता रहता है। अल्लाह ताला ने आप पर बड़ा रहम, ये उनका अल्लाह ताला को बड़ा ये अनायत है आप पर कि अगले 5-6 हफ्ते में जो सबसे मुश्किल काम है लाशऊर को समझना, वो आप कर लेंगे। हाँ, लाशऊर को समझने लग जाएंगे कि आखिर मुझे वो कौन सी चीज़ें जो मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मैं इजहार नहीं करता, मैं ब्लॉक हूँ, अगर करूँ तो मैं मजीद आगे बढ़ सकता हूँ। तो हजूर दली हजरात, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आम बात हो रही है। जो भी नफ्सियाती बात दरवाज़ा खोल के बाहर आती है, आने दें, पकड़ लें उसको और उसका इजहार करें। इजहार करने से आप महसूस करेंगे कि आपके सामने कई रास्ते खुल रहे हैं और कामयाबी की रुकावटें ख़त्म हो गई हैं। आप इस पर ज़रूर अमल करें और उसका ख्याल रखें। मैंने आपको एहसास दिला दिया है और नए मौके भी आ रहे हैं आपके लिए, उनसे भी देख लें जितना फ़ायदा उठा सकते हैं या जितनी तब्दीलियाँ आप ला सकते हैं, और कोई शख्स आपकी रहनुमाई भी करेगा।
अगर कोई मसला है तो आपकी रहनुमाई करेगा। और उसके बाद आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, मैं जैसे मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ, जो आपके अंदर रुकी हुई हैं लाशऊरी तौर पर, वो आप इस 3-4 हफ्तों में उन लाशऊरी से रब्ता करें। वो बाहर आने वाली हैं, आने दें फिर, और उनको आने दें, ये सही कह रहे हैं, और उनसे फ़ायदा उठाएं। आ जाएं जी, अब पाइसिस पे आ जाएं और आने वाले 5-6 हफ्ते में ज़रा अखराजात पे कंट्रोल करें। आए जी, अब पाइसिस पे आ जाएं। पैसे ज़रात आपको पुरानी ज़िंदगी बड़ी सता रही है, पुरानी यादें आएंगी। और आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी पुरानी यादें आपको दिलवाएंगे बैठकर आपके पास। तो आप सुनिए और पुराने माजी के वाक़यात को याद करें और सर दुनिए। माजी परस्त तो आप पहले ही हैं, इस हफ्ते आप मज़ीद माजी परस्त हो जाएंगे और माजी के वाक़यात को याद करेंगे। औलाद के साथ आपको बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, एंजॉय करें और दूसरों के लिए बग़ैर किसी गरज, बग़ैर मफाद का मदद करते रहते हैं। तो ज़रूर करें, क्यों न करें, लेकिन अपना भी तो ख्याल किया करें। बहुत ज़रूरी है वो तो। अपना भी ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह वो ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये तो अक्सर ऐसा है कि दूसरों के लिए अगर दुनिया में कोई सही मोहब्बत करता है, अपना समी साहब, वो हूती अफराद करते हैं। अच्छा, दे आर ओनली कैपेबल ऑफ ट्रू लव, यूनिवर्सल लव। बाकी सब बुरे जो हैं वो अपने वक्ती तौर पर हवा आई, हवा महसूस की, बस। These are the people who truly loves। ठीक हो गया। और इस हफ्ते अपना ये अच्छा औलाद के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। उसके अलावा आपने ज़िंदगी में तब्दीली महसूस की होगी। आप ये जो पिछले हफ्तों में आप उसके लिए वक्त आ गया है कि आप इसको मज़ीद अपनाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मज़ीद दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, प्लानट ऐसे लगे हुए हैं, आप आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी और आपकी जो रोमानी ज़िंदगी है 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो रोमानी ज़िंदगी 1 गुना बर्दाश्त नहीं होती, वैसे समी साहब इख्तलाफ करेंगे। 4 गुना आप कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये समी साहब बताएंगे। मैं बताने की बजाय इजाज़त लेता हूँ यह प्रोग्राम, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।